It's a pleasure to meet somebody else who's making content as cheaply as I am. मैंने कहा था यही होगा, तुमने मेरी बात नहीं माना। अरे हमारी फिल्म में डायलॉग है यार, भूख तो अच्छा। हमारे यहाँ हर प्रकार के पंचर ठीक किए जाते हैं। हमारी फिल्म में यूट्यूब के ब्लॉगिंग भी है, इंस्टा की रील भी है, डीप फेक भी है। अभी आपकी LSD 100 करोड़ कमाएगी ना, आप फोन भी नहीं उठाओगे मेरा। एक बार ही उठाऊंगा, 100 करोड़ बोलेंगे, एक बार ही उठाऊंगा, थैंक यू बोलूंगा। Kingfisher Ultra. Fine, thank you so much. And we gotta do it something like this. दिवाकर दादा, it's an honor to have you here. Not just, I'm not It's saying a this pleasure. Not It's a just, I'm pleasure not to saying meet it. somebody else Yeah. who's making content as cheaply as I am. It's indeed, I feel less alone. That was very good. That was very humbling, and I consider that as a very good compliment coming from a जैसे आप- legendary filmmaker. जैसे आप अपना व्लॉग बना रहे हो ना, मैं LSD2 वैसे ही बना रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि इतने पैसे में ऐसे ही बनते हैं। इतने पैसे में हम बजट पे भी आएंगे भाई। दादा, हाँ, so हाँ, tell me one thing. You grew up in Delhi, no? West Delhi में. I was reading up about हाँ it. जी। West Delhi में कहाँ पे था? नहीं, no. I grew up in Central Delhi. अच्छा। I grew up in Karol Bagh. Then I moved to Ashok Vihar, proper West Delhi. Oh, right. And then I went to Harinagar Ghantagar, which is Southwest Delhi, near Cantonment. Right. Since you're from Delhi, that's why I'm sort of, हाँ। trading those names as if they're very familiar. मैं रोहिणी में पला बड़ा हूँ। मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का प्रोडक्ट हूँ। करेक्ट। मेरा सबसे बहुत पुराना, मतलब सबसे अजीज क्लास फ्रेंड्स में से एक हाँ। इधर है, क्या कहते हैं, पश्चिम, वो जो टीवी टावर है ना, वो हाँ। पीतमपुरा में है वो। और मैं हरिनगर घंटाघर के पास हूँ। आजकल तो फैंसी नेम हो गया, माया एनक्लेव। What are some of the fondest memories that you have from West Delhi? अलग ही लैंडस्केप है वेस्ट दिल्ली का। आप you know that साउथ दिल्ली का अलग है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का बहुत अलग है। So how much time did you spend there, and what are some of the fondest memories that you still carry with you? Well, I have very strong memories of West Delhi, but I don't think if I can call them fond. Fond doesn't come to mind immediately when you think of Delhi, West Delhi and all that, because 2-3 things. I was growing up at that time. I was a teenager. Right. You're completely fucked up in your head. Your hormones are raging, and it's hot and it's dry, and everybody's just getting with the heat, Right. and everybody's blood is up, and so those memories are not fond. I can call them intense, Right. So that's there. And graphic memories I have memories of like what that time was and whatever. And so Anything you remember कि complete complete show क्या हो गया? Anything you have related to Delhi that you would be like कि यार this is something that I would never forget. एक मेमोरी है, वो 84 राइट्स में क्या हुआ था कि हमारे वहाँ पे तिलक नगर में कुछ ज्यादा दंगा हुआ था। Right. हम अपने DDA फ्लैट्स में थे और काफी दिनों तक हम बाहर नहीं जा सकते थे, और तिलक नगर वगैरह इन जगहों में मारकाट ज्यादा हो रही थी। तो वन डे वी गॉट अप ऑन आवर टेरेस एंड हमने 360 डिग्री देखा। तो जो भी वेस्ट दिल्ली का 360 डिग्री मंजर जो था, हर जगह से वन पिलर ऑफ स्मोक, हर जगह आग जल रही थी। तो हम बीच में खड़े हुए थे और 360 डिग्री आग जल रही थी हमारे आसपास। Right. And how old were you this time? I must have been about I was 13, 84, 13. So you could process what was going around you. You could process that there was violence, there was unrest around you. You could actually literally process Not it. totally. Right. Not totally. You had a fair bit of idea. But it's like this memory that I'm telling you, it's around me. So that feeling of that boom, that still, I still remember. In fact, I drew a sketch of it somewhere also. So what age were you when you left Delhi? I mean, I left in 2004 after shooting Khosla Ka Ghosla. Oh, right. So Khosla का जो सारा setup है,
in the backdrop, it's very hardcore Delhi. If you look at the film also, if you look at the uncles, if you look at the preaching uncles, right? If you look at the undertones of the thing, कि किस direction में किस कौन सा character है, everything you notice, like property dealer ऐसे ही तो होते हैं दिल्ली के यार, आज तक ऐसे ही, right? One thing that I loved about it is कि जो property dealer होते हैं, they are also the one of the biggest bhakts, right? They would have the biggest murti of Bhagwans, and they would I have know the biggest lots of idols. property dealers who are actually very honest, but like every other profession, what happens is that property dealer का चक्कर ये है कि वो anxiety के पैसे लेता है. हाँ खरीदने वाले को खरीदने की एंग्जाइटी है, बेचने वाले को बेचने की एंग्जाइटी, और प्रॉपर्टी डीलर वो ट्रेड करके पैसे बना रहा है. तो आपका रिश्ता वैसे ही सड़ा हुआ होता है कि साले मेरी फटी हुई है और तू पैसे बना रहा है. You know, so Makes sense. there is this Freudian psychological prejudice against property dealers. But yeah, I mean, Delhi has those colorful characters. मुझे याद है एक बंदा, हम किराए का ऑफिस ढूंढ रहे थे, मैं और मेरे पार्टनर्स 90s में. हमारा पहला ऑफिस, उनको एक प्रॉपर्टी डीलर डिफेंस कॉलोनी ले गया. तो हमें कहीं जो भी दिखा रहा था वही दिखा रहा था घर. हमारी गाड़ी में बैठ के जा रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, पीछे बैठे हुए थे और जा रहे हैं. तो फिर हमने कहा जी कहाँ है बताओ. चलो, हाँ जी चलो. तो वो जा रहा है, फिर बोलता है कि ये हाँ जी ये A/264 किधर पड़ेगा. तो वन गाय सेड हाँ उधर पड़ेगा. फिर थोड़ी देर बाद आके हाँ जी ये A264 किधर पड़ेगा. तो मैंने उससे पूछा कि आपको पता नहीं है. पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो. पूछना पड़ता है ना, पूछना पड़ता है. For उसे what पता reason? भी है और God knows. हाँ. तो what do you think, ये सारा जो अभी आपने प्रेजुडिस की बात करी, ठीक है, कि वो एक अजीब सा एनवायरनमेंट हो जाता है कि यार मेरी फटी पड़ी तो पैसा बना रहा है. इस सब चीज को सटल और सबलाइम कर देता है बीच में द प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज आइडल ऑफ भगवान, राइट? इफ यू एंटर एनी दिल्ली में, आप किसी भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाओ, bigger than the wall would be the painting or the whatever you call it, मूर्ति रखी होगी या बहुत बड़ी फोटो भगवान जी की लगी होगी वहां पे. What do you think, why is this done? Is this to pacify the whole situation कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान के नीचे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हम कर तो धांधलेबाजी रहे हैं, वहां तो बस फोटो ही लगी हुई है. एक्चुअली काफी फिल्म स्टूडियोज में भी यही होता है. Now you are भगवान talking. की- वो भी तो प्रॉपर्टी डीलर ही है. नहीं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं, वो फिल्म स्टूडियो, वो फिल्म बनाते हैं. मेरे हिसाब से जिनके पास सैलरी नहीं होती देने की. और सैलरी नहीं आती, और वो जैसे मेरे जैसे जो अपना धंधा चलाते हैं, हाँ. वो कोई मतलब डील बनी और खाने के पैसे आए. डील टू डील चलता है, चाहे कोई फिल्म बना रहा हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, डील टू डील चलते हैं. मैं खुद डील टू डील चलता हूँ. हाँ. तो क्या होता है कि इतनी सारी अननोन चीजें होती हैं ना कि उस पर आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते. राइट. तो फिर हर वक्त आपका ना एक एंजाइटी बनी रहती है कि कौन सी डील बंद होगी, जमेगी तो पैसे लूंगा, कौन सी डील करेगी, किस डील में ज्यादा टाइम दूं. फिर मैंने 3-4 महीने एक डील को दे दिए एक घर को बिकवाने के लिए. फिर उसके बाद जो बायर है वो मुकर गया, वो पीछे हट गया. 4 महीने की मेहनत चलेगी. तो उस टाइप का जो एक मतलब सिचुएशन होता है, तो यू आर ऑलवेज ऑन एज. लाइक अपने फिल्म मेकर्स की बात करो, हम LSD2 रिलीज करने वाले हैं, थिएट्रिकल रिलीज हो रही. LSD2 जैसी फिल्म आज की दुनिया में इस तरह से, तो मतलब बहुत सारी मतलब एम्बिशंस हैं, बहुत सारे होप्स हैं, लेकिन डर भी लगता है कि क्या, लेकिन फिल्म भी अच्छी होनी चाहिए. तो ये सब मिलके ना वो आप अपने आप, हमें लगता है कि कोई भगवान हो, कोई भगवान हो, कोई भगवान हो जो सब ठीक कर दे, जो सब ठीक कर दे. वो हमारा भगवान हो, वो हमारी सुने और किसी की ना सुने. राइट. तो वो पर्सनलाइजेशन हो गई ना एक तरह से, कि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू होल्ड अ हैंड दैट यू कैन नॉट इवन सी, बट इट गिव्स यू दैट रिलैक्सेशन कि चलो कोई तो है. इट डिपेंड्स अपॉन इट. सिंस आप बोल रहे थे वो मेरा भला करेगा. हाँ, वो मेरा भला करेगा, चाहे किसी और का बुरा करे, मेरा भला करेगा. दैट्स ट्रू. और इसको एक तरह से आप धंधा भी बना लिया गया है. वी हैव सीन इट
in multiple films also. घोसला है घोसला में भी आपने कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ दिखाई ही थी, जब उसके ऑफिस के शॉट्स होते हैं, पीछे भगवान की मूर्ति है, हाँ, स्टफ लाइक दैट, हाँ, राइट? हाँ, हाउ हाँ, दीज हाँ, गाइज हाँ। यूज इट. देखो, एक तो रिलैक्सेशन वाला हो गया सीन जो मेरे को लगा, एक व्हाट आई थिंक इज दीज गाइज यूज that thing to showcase that everything that's happening on the table or under the table is happening in a very right state of mind. वो justified है, right? जैसे अगर मैं Because it was meant to be. right, Because it was was meant meant to be such, and Yes. it's this thing. Yeah, I agree. संजोग है भगवान But का. also भगवान से भी ज्यादा हमारे यहाँ पे और इंडियन सोसाइटी में, जो खास करके नॉर्थ इंडियन की सोसाइटी में, एक और चीज भी होती है कि सब भाग रहे हैं यार पैसे के लिए. ऐसा भी नहीं है कि मतलब देखो 5 या 6 अमीर लोग होते हैं पूरे रीजन में, और बाकी जो 2 करोड़ 3 करोड़ बैठे होते हैं पल रहे हैं, वो बस वो नीचे चल की रहे हैं. बटोर रहे हैं. हाँ, तो वो जो 5-6 है वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत, उनका सब कुछ है. लेकिन जो नीचे जो हम 1-2 करोड़ पर कंस्टिट्यूंसी बैठे होते हैं, हमारी हालत खराब हो जाती है. तो हमको ऐसा रहना ही पड़ता है, हमको डील टू डील रहना पड़ता है. हमको मन करता है कि यार जहां मार लिए पैसे मार लो फटी. अभी फिर एक ट्रेनी ने कहा था बहुत दिन में, सर अभी नोट पीट लो सर, अभी मत सोचो. तो नोट पीट के निकलो. मैं सोच रहा था कि ये फिल्म स्क्रिप्ट लूं कि नहीं लूं, गंदी स्क्रिप्ट है, क्रिएट एड फिल्म क्रिएटिवली. सर आप नोट पीट लो सर, बाद में सोचना सर, पहले नोट पीट लो. नोट पीट लो. So you want to earn, you want to stay alive, you want to survive, और आपको पता है कि 90% वेल्थ हाँ, कंसिडरेटेड है. 5 या 6 फैमिलीज के पास है पर कंस्टिट्यूंसी, और बाकी आप स्मॉल पिकिंग से बाकी 1-2 करोड़ जी रहे हैं. हाँ. तो आपको भागना पड़ता है. तो सर आपने कहा जैसे कि नोट पीट लो, राइट? तो अगर आपको नोट पीटने होते, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को लगता है कि घोसला 2, ठीक है, या फिर ओए लकी लकी ओए 2, या फिर शंघाई 2, अ फिल्म लाइक दिस यू वुड हैव बैंग्ड ऑन. व्हाई अ फिल्म लाइक LSD 2 एंड दैट टू आफ्टर 14 years? व्हाट मेड यू टेक दिस डिसीजन? क्यों What नहीं made you take मतलब LSD 2 मेरे हिसाब से सीक्वल, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ सीक्वल, मैं तो अपनी अगली फिल्म सोच रहा हूँ. क्योंकि आइडिया भी मेरा नहीं था. आइडिया एक तक ही था कि LSD 2, और जब उसने बोला 2019-20, it was 20 just before the pandemic, राइट. and then we said, oh, a decade has passed, oh fuck, yeah, fine, we can figure something out. तो मैंने कहा कि यार I'll think about it and I'll come back. Then COVID happened, my other film happened, and then I had to come back. Then we started. So it was a sort of cycle of things that happened. But I found that this was the perfect time to make LSD 2, because in these 10 years, and now it's 13-14 years. 14 years, yeah. In these 10 years, life has happened in a way that I can make a film about it. नहीं तो अगर 2012 में क्या बनाता मैं, 2015 में, 16 में, 17 में क्या बनाता, उसके बाद बननी चालू हुई है लाइफ. तो पिछले 5-7 साल में और भी जो हम एक नई दुनिया बने हैं, वो बहुत अच्छा हुआ कि अभी बना रहे हैं, क्योंकि फिर आगे जा सकते हैं ना, रिपीट नहीं करेंगे फिर. Right. How active are you on social media since this film concerns Not at all. about? I'm not. You are not. I'm not. Because yeah, मैं भी आपके traces I'm देख not रहा था, present. barely any. हाँ, you're not present. You're not. I'm not present. Right. I'm not present visibly, but Yeah. I mean, I research and I troll. हाँ, राइट. तो आपकी जो फिल्म की कहानी है वो लूजली नहीं कह सकता मैं, इनफैक्ट बहुत हार्डकोर तरीके से इंटरनेट की दुनिया पे जो यंगस्टर्स रहते हैं, द कंसिस्टेंट आई बॉल्स, राइट, जैसे बिग बॉस का है, उसके अंदर अलग अलग रियलिटी शोज का, आपने डांस में क्या होता है, डांस रियलिटी शोज में क्या होता है, हम सब ने ट्रेलर में देखा है जो आपने दिखाया. सो हाउ डिड यू कनेक्टेड टू योर लेंस कि यार मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, आई एम नॉट इन टू द ट्रेंड्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, यूथ जेन जी जिसको बोलते हैं, द एंटायर वोक कल्चर जो आपको आज बैठे बिठाए कैंसिल कर सकता है, राइट? अगर आपने कुछ ये कर दिया, जैसे अभी हम कल्चरल अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे थे, वन स्लिप ऑफ टंग एंड यू कैन बी कैंसिल्ड, राइट? So was it you who conceived the story or conceived the fundamental idea of LSD 2, or was it your writers? Because वो भी बहुत कुख्यात हैं दोनों, मैंने ई बाले वो भी देखी है उनकी, one of the finest films. अरे वाह, फैंटास्टिक. सो मैं बताता हूँ, LSD 2 चालू करने में, हम जब चालू कर रहे थे तो मेरे पास 3 कहानियां था लूजली. ठीक है. तो मैं वो लेके प्रतीक, वत्स और शुभम के पास गया. तो फिर उन्होंने उन 3 कहानियों को इवेल्युएट किया. फिर उन्होंने बोला कि यार ये 2 कहानियां यार छोड़ो, ये 2 या 1 कहानी कुछ छोड़ो. फिर उसके बाद 1-2 कहानियां, वो जो गेमर इन्फ्लुएंसर है, यंग गेमर इन्फ्लुएंसर, वो, और वो जो
जो एक कर्मचारी है, ट्रांसजेंडर कर्मचारी, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में बाथरूम सफाई का काम करती है और अपना यूट्यूब चैनल चलाती है अपने लिव इन पार्टनर के साथ। राइट। तो ये दोनों कहानियां मेनली प्रतीक और शुभम से आई। एंड आई डोंट नो इस कहानी में किसका क्या योगदान है बिटवीन प्रतीक एंड शुभम। मेरे को इतना पता है कि जो ट्रांसजेंडर जो जेनिटर की कहानी है, राइट, वो शायद प्रतीक के बहुत करीबी कहानी है। प्रतीक से ही उसका मतलब ओरिजिन स्रोत बना। राइट। और जो ये वाला है, क्या कहते हैं, गेमर की कहानी, लगता है शुभम, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की क्योंकि हम बस कहानी क्या है उसके बारे में बात करते रहे। और जो ये रियलिटी शो वाली है, यहाँ पे कहीं शायद मेरे से कुछ ये निकला था। तो ये सब मिला के फिर मैं तो भूल गया हूँ कि क्या हुआ। ये कहानियां याद है। और उसके बाद प्रतीक और शुभम ने जो कहानी बनाई या कहानी की जो नींव रख दी, वो LSD 2 है। मतलब मैं अकेले नहीं कर पाता। बिकॉज आई थिंक प्रतीक और शुभम ने, अगर ई वाले वो लोगों ने देखी, आई डोंट थिंक सो लॉट ऑफ लोगों ने देखी है वो पिक्चर, लेकिन अगर आप उसको वो देखोगे क्यों देखेंगे? देखने वाली चीज क्यों देखेंगे लोग? that's a good thing। देखने वाली चीज क्यों देखेंगे? Which brings me to my next question। मैं ये पूछने ही वाला था। A director like you, a visionary director like you, who makes slice of life films, ठीक है, who discovers the darker sides of a society, ठीक है, आपके तर्क होता है, कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है, and you are right now living in an atmosphere, at least post 2018, ठीक है, हर चीज मसाला हो गया है, everything is मसाला, everything is about the star pull, राइट। 1000 करोड़ की बात होने लग गई है, 500 करोड़ की बात होने लग गई है। हाउ डू यू सी योर सेल्फ पोजिशनड इन सच एन एटमोसफेयर? और कल को आप कोई मसाला फिल्म, इफ अ स्क्रिप्ट कम्स टू यू कि पैसे पीट लो, राइट, इफ दिस थॉट टेक्स ओवर योर करंट थॉट प्रोसेस कि यार मुझे पैसे पीटने ही है, राइट, लेट्स डू अ मसाला फिल्म, लोग वही देखना चाहते हैं, वुड यू बी cautious enough to tread that path? Would you go ahead and do that? मेरे से ये कुछ नई बात थोड़ी हो रही है। आप ऐसे बता रहे हो कि 2018 में पहली बार हो रहा है। नहीं, इससे पहले भी हुआ है। राइट। हम 2004, 5, 2006, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोगों की शुरुआत हुई थी। अनुराग की, मेरी, और भी काफी लोग थे इसमें। और मेरे को याद है 2005 में मकबूल भी रिलीज हुई थी। एग्जैक्टली। हाँ। तो काफी, मतलब एक पूरी जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स ने देखी कि भैया ठीक है, इंडिया में ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं अपनी ही भाषा में। ये नहीं कि हम कोई विदेशी भाषा में अपनी देसी फिल्म बनाए। तो जो भी है, तो वो सब कुछ जो हो रहा था उस टाइम पे भी हम हर वक्त लड़ ही रहे थे। और हमें पता था, और मुझे तो पता ही था कि मैं तो मार्जिन में हूँ। उस टाइम में ही पहली बार 100 करोड़ की फिल्मों का दौर आया। उस टाइम में ही शाहरुख की डॉन रिलीज हुई। बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज हुई थी। और मुझे इतना पता था कि जितनी बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज होंगी और जितनी वो हिट होंगी, उतनी हमारी छोटी पिक्चरों के लिए पैसे बचेंगे। प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नहीं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बड़ी बड़ी फिल्में जब बड़ी हिट करती हैं तब स्टूडियोज के पास पैसा होता है। तो चल यार, ये थोड़े छोटे पैसे में कर देगा, ठीक ठाक है, कुछ हो जाएगा, पैसे नहीं लूज होंगे। तभी तो वो कॉन्फिडेंस बनता है। तो वो बड़ी बड़ी फिल्में हिट हो रही थी। उसके बाद हर वक्त हम फाइट करते रहे। फिर 2010-11 में 100 करोड़ का बैंड वैगन आया, जब हम लोगों को बताने लगे कि क्योंकि इस पिक्चर ने 100 करोड़ किया है इसलिए आप इस फिल्म को देखो। तो एक नया दौर आया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब लिफ्ट में चढ़ने लगा तो साथ वाले नेबर, हाउ वाज द ओपनिंग? तो मेरे कहा, सर मुझे कुछ नहीं पता क्या ओपनिंग है, मैं तो अभी फिल्म खत्म करके आ रहा हूँ। मेरा तो मन है कि मैं, आई कैन सी सम पीपल लाइकिंग द फिल्म एंड कॉलिंग मी एंड दिवाकर, यू मेड सच अ गुड फिल्म। बट अंकल ने सीधा पूछ लिया, हाउ वाज द ओपनिंग? सो आई सेड गुड। और क्या कह सकता हूँ? तो वो चला, तो ओपनिंग इज गुड चला। वो वाला फेज चला। उसके बाद क्या हुआ कि 2018-19 के टाइम तक लग रहा था कि चलो ठीक है, OTT आ गया है, थिएटर भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, शायद हमारे लिए दरवाजे और खुल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ
ये पता चला कि एक तो ये हुआ कि वो करते 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 हमें ये पता चला कि स्टार सिस्टम ओटीटी में घुसने वाला है राइट 2018-19 में। तो उस टाइम पे आई थिंक 2020 में मैंने कोई इंटरव्यू में बोला ही था कि हमने जो थिएट्रिकल के साथ किया वो ये अगर हम ओटीटी के साथ करेंगे तो फिर वही हालत होगी, फिर मर जाएंगे, फिर लोगों के पैसे टूटेंगे, फिर लोगों का कॉन्फिडेंस टूटेगा, फिर लोग फिल्मों से पीछे हट जाएंगे, पैसे देने वाले फिल्मों से पीछे हट जाएंगे और देखने वाले फिल्मों से पीछे हट जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोविड हो गया। कोविड के बाद मेरी तो आदत ही छूट गई कि मैं घर से निकलूं, मैं सब कुछ रिमोट में करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ तो क्यों कोई थिएटर जाएगा? तो अभी थिएटर पे आना बहुत मुश्किल और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। और अब हम थिएटर में आएंगे और 500 रुपए 600 रुपए के टिकट के पैसे देंगे तो कौन छोटी फिल्म देखने आ रहा है यार? तुम जाओगे बड़ी बड़ी फिल्में देखने जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं, बड़े बड़े बस फूट रहे हैं, यू नो, बड़े बड़े बम फूट रहे हैं, सब कुछ बड़ा होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि उस तरह की फिल्मों के अंदर, बड़ी चीजों की फिल्मों में कहानी अगर स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा कर जाएगी, बड़ी चीजों में अगर कोई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा कर जाएगी। ये होता है। अब साथ साथ ये हो रहा है कि हालत खस्ता है, कहीं कुछ कर नहीं सकते, कहीं कुछ बोल नहीं सकते, कहीं कुछ जा नहीं सकते, महंगाई बढ़ रही है। तो फोन पे मैं वो देखूंगा जो मेरे मन की बात हो, और मैं बाहर जाऊंगा बड़े स्क्रीन में तो मैं सोचूंगा कि यार मेरे को भागना है, यार मेरी फट रही है, मेरे को देखना है कि बंदा कैसे टाइम से आई मीन एस्केप तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि बंदा मतलब लाइट से भी ज्यादा फास्ट कैसे भागता है। राइट या ऐसा बंदा हो जिसके वो 6 पैक्स ना हो, जिसके 12 पैक्स हो। हाँ हाँ बट इसी में कुछ जब स्मार्टली थॉट फिल्में आती हैं, जैसे शाहरुख की 2-3 फिल्में आई एक के बाद एक के बाद एक, तो फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राइट ठीक है कि अब छोटी फिल्मों को जगह मिलेगी, क्योंकि जब ये फिल्में पैसा कमाती हैं तो ही छोटी फिल्में बन सकती हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। बट सर आपको ये नहीं लगता विद द रीसेंट फिल्म्स, देयर आर कपल ऑफ फिल्म्स, जैसे फ्रॉम डे वन आई wouldn't say I was against, but I was very I thought very oddly with what Gadar 2 is going to do with the industry, right? The film came out, the first film was a nostalgic connect with everybody loved that film, 2001 में आई। उसके बाद this film comes out और उससे 2 साल पहले आती है चुप, 1-1.5 साल 2 साल पहले आती है चुप। तो सनी देओल के जो so called fans हैं, those guys do not होल्ड द थिएटर्स, थे वो जाके वहां पे नहीं पीट रहे हैं ढोल नगाड़े की सनी पाजी की नई पिक्चर आ गई। गदर 2 comes in, और गदर 2, I don't know if you've seen the film or not, but No, I haven't. yeah, it's a pretty trash film, to be very honest. It's not a very good film. Yeah, it's been made. You might think मैंने नहीं देखा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, it's not what You Dada might saying. be an elitist. You might be an elitist. नहीं, I'm not an elitist. I'm telling you this thing. Even for the elite, for anybody, that film actually makes no sense. But ठीक है, whatever it is, the film performed brilliantly well. But ये ट्रेंड एक स्नोबॉल शुरू कर देगा of things कि भाई हर पिक्चर का पार्ट 2 बनाओ, कहानी कुछ हो ना हो, ठीक है? Oh, that way. बस हमारे को नॉस्टैल्जिया पे बैंक करना है and we'll collect 500 crores. That's the whole point. मुझे तो करना है। हाँ, मुझे तो करना है। Right. मुझे तो करना है क्योंकि LSD बनाई है, हाँ। रिस्क लिया है। But LSD still has a story, no? That's what I'm saying. LSD still deals with the current scenario. नहीं, LSD 1 की बात कर रहा हूँ। LSD गदर में भी तो स्टोरी थी, गदर 1 में। गदर 1 में स्टोरी थी, 2 में नहीं है ना? That's my only gripe. हाँ, that was my only gripe. तो क्या पता मेरी LSD 2 निकले और उसमें आप बोलो स्टोरी नहीं है, वो आपको लगे तो मेरे को पता नहीं। With the trailer, I can understand that you are trying where the film is going to go. Okay, you can make it out with the whole trailer, right? With the whole Adi Purush fiasco that happened, like you knew it from day one that where this film is going, which direction this film is headed into, right? Which fiasco? The whole Adi Purush thing that happened. If you are aware about it, the Adi Purush film, did you see it? Did you watch the film? No. Adi Purush नहीं आई थी प्रभास की। It was a huge film that came out last year यार, रामायण पे
एंड इट वाज ऑल ओवर, उन्होंने पूरा स्टॉप मोशन में बना दिया, ऐसा था क्या पोस्टर, ये वाला था क्या पोस्टर ऐसे? हाँ राइट राइट। It was a huge fiasco. The director, I haven't seen any public appearance of that director's right after the release. Right? He makes a film on Ramayana. So I'm just giving you an example of how content is getting snubbed in the day of masala films. That's what I feel. कि one perspective is yours. नहीं देखिए आदि पुरुष बनाने के पीछे शायद किसी को खुश करने की एक मतलब चाह हो कि हम किसी को खुश करें, किसी तबके को खुश करें या किसी पावरफुल इंसान को खुश करें, हो सकता है। लेकिन बहुत सारी फिल्में खुश करने के लिए बनाई जाती हैं और वो वैलिड है, उसी के पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि LSD 2 मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि LSD है और उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, जबकि हमें पता है कि जो LSD 2 अभी जाके देखेंगे वो बच्चे थे जब LSD निकली थी, तो उन्हें LSD के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो देखेंगे एक फिल्म जिसके एंड में 2 लगा हुआ है, अगर इंटरेस्टिंग लगी तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, मेरे को पता है। तो उनके लिए वो LSD की उतनी कोई मायने नहीं है, वो एक फिल्म देख रहे हैं 2। अब जो 20 साल के थे या 25 साल के थे, आज वो 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, जो वो LSD 2 देखेंगे वो देखेंगे नॉस्टैल्जिया में। बट द ऑडियंस दैट वी नीड फॉर मी टू मेक मनी, उनके लिए LSD 2 एक पहली पिक्चर होगी। तो मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, जैसे आपने अभी बोला था, यू आर नॉट ट्रीटिंग दिस फिल्म एज अ सीक्वल। ये एक इंडिपेंडेंट है और ट्रेलर देख के भी यही लग रहा है कि पहले वाली भी उस टाइम पे, जैसे अभी हम शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, 2004 में पहला MMS पॉपुलर हुआ था, राइट? DPS मथुरा रोड वाला स्कूल वाला बहुत पॉपुलर हुआ था, एंड उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ MMSs आने लग गए थे, इफ यू रिमेंबर। 2004 से लेके 2008 के बीच में आई वाज इन स्कूल, आई ग्रेजुएटेड स्कूल इन 2009 एंड 2010 LSD केम आउट। और मुझे आज तक याद है, इट वाज माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज और LSD का नाम ही MMS के चक्कर में हो रहा था, बिकॉज द फिल्म वाज सो सोशली रेलेवेंट। एंड लोग वहां तक गए कैसे? जैसे वो बोलते हैं ना कि यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल को क्लिकबेट बना दो, राइट? तो आपकी पिक्चर में जो क्लिकबेट था, अगर आज के टर्म्स में बात करी जाए, इंटरनेट टर्म्स में, जो क्लिकबेट था वो MMS था कि यार MMS हो गया। हम भाई होटल में गया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाह रहा था, एंड 2 days लेटर वी एंड अप ऑन अ पॉर्न साइट, राइट? एंड दिस वाज लाइक एवरीबॉडी, हर किसी के सबकॉन्शियसली फट गई थी कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाट पुल्ड द क्राउड टू द थिएटर्स 2010 में। मुझे आज भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि LSD का मैं शो देखने गया था कॉलेज से बंक करके, एंड द ओनली थिंग वाज कि यार इसमें MMS होगा, MMS की बातें होंगी एंड स्टफ लाइक दैट। सो व्हाट डू यू थिंक इन LSD 2? ऐसा क्या पुल है LSD 2 में व्हिच यू थिंक दैट पीपल राइट नाउ की, एंड कीपिंग इन माइंड कि आज इंटरनेट का जमाना है सर, एवरीबॉडी इज ऑलमोस्ट रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट कि यार ये मैंने देखा हुआ है, बिग बॉस में ये होता है, राइट? व्हाट्स न्यू इन दिस थिंग? हाउ आर यू प्रेजेंटिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे दैट इट लुक्स वेरी डिफरेंट टू मी? मुझे एक ही चीज पता है, मेरे लिए डिफरेंट नहीं है ना, मैंने तो बनाई है पिछले 6-7 महीने में बैठ के ये फिल्म, तो मुझे कोई डिफरेंट नहीं लग रही, मुझे वही लग रही है जो मेरे को बनानी थी। तो मैं एकदम ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ। मुझे इतना पता है ऑब्जेक्टिवली कि LSD 1 की जो कहानी है वो आज कोई कहानी ही नहीं है, और LSD 2 की जो कहानी है वो 2010 में वो कहानी हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। तो मुझे बस इतना ही पता है। अब उसके आगे लोगों का पुल क्या है मुझे नहीं पता यार। मेरे हिसाब से एक पागलपन तो आ गया है हमारे में पिछले 6-7 साल से, जिसमें लग रहा है कि हम कलेक्टिवली पागल हो रहे हैं। मतलब इन व्हाट सेंस? इन सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स, इन कल्चरल टर्म्स? नहीं यार, आई मीन आई थिंक एक वायरस तो है जो सबको पागल कर रहा है कम्युनिटी वाइज। तो हम सब पागल हो रहे हैं धीरे धीरे। कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां पागल हो रही हैं, लोग पागल हो रहे हैं, देश पागल हो रहे हैं। तो वो एक पागलपन का एक रिकॉर्ड रखना चाह रहा हूँ। तो ये वो पिक्चर वो दिखता है ट्रेलर में, वो दिखता है ट्रेलर में, वो आक्रोश दिखता है ट्रेलर में, वो एंगर। मतलब एक एंगर का पता नहीं, लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पागलपंती आ रही है। इसको पकड़ के रखना चाहिए, कैद करके रखना चाहिए, क्योंकि बाद में देखो पागल के आगे क्या है। पागल के आगे है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी, हाँ, इसके आगे तो जिंदा लाश ही हो जाएगा तू।
तो zombie जब जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम कौन सी देख रहे हैं फिल्म, क्या देख रहे हैं, जो दिखाएंगे वो देखेंगे और वही करेंगे। Right. सो zombie से पहले पागलपन की स्टेज में कम से कम हम दिखा के इतना तो कह सकते हैं ना कि यार क्या पागलपंती हो रही है यार। हमने तुम्हें तो- बताया था, वी वार्नड यू ऑफ दिस। हमने तुम्हें बताया था, अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ थोड़ा मेरे में वो सिंड्रोम है, हाँ थोड़ा मेरे में वो सिंड्रोम है, वो दैट पर वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। पता नहीं, I it's think like वो a होना जरूरी है। hectoring professor and a biblical told you so. prophet kind of rolled into one. Right. But don't you think मैंने that मैंने कहा था यही होगा, तुमने यही मेरी होगा और बात वही नहीं हुआ। मैंने वही कहा हुआ। था। अरे हमारी फिल्म में डायलॉग है यार, भुगतो अच्छा हाँ। है हमारी फिल्म में भुगतो, So, अब see, भुगतो। that's the whole point. No, throughout your film journey, right? Throughout your filmography, ठीक है, आप शंघाई भी ले लो, the way it deals with the socio-political diaspora around it, with the dialogues, is brilliant. और यहीं पे ये वाला जो सिंड्रोम है कि ये भुगतो, मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना ये होगा. You need shepherds like these, right? In filmmaking. Who would मुझे tell you that लगता this है is कि happening? अगर किसी भी पॉडकास्ट में किसी भी फिल्म को सोशियो पोलिटिकली रेलिवेंट बोला जाए तो उसकी डायरेक्ट थिएट्रिकल अर्निंग 5 करोड़ कम हो जाएगी। तो मैं कोई सोशली रेलिवेंट फिल्म नहीं बना रहा, बिल्कुल सोशली रेलिवेंट नहीं है, मसाला, let's call it मसाला, सीधा एकदम 100 फुल करोड़। इसमें। हाँ, लव सेक्स और धोखा तो है ही, हाँ। और इस फिल्म को हमने कई कई दुकानी थी ना, हमारे यहाँ हर प्रकार के पंचर ठीक किए जाते हैं। तो हमारी फिल्म में भी हर प्रकार लग की रहे हैं। फिल्में, हाँ हमारी फिल्म में यूट्यूब के व्लॉगिंग भी है, इंस्टा की रील भी है, डीप फेक भी है, वर्चुअल रियलिटी भी है, रियल रियलिटी भी है, और समझ नहीं आ रहा कौन सा क्या है। हाँ, so everything's there. Let's call it masala, sir. I want full this film to do 100 crores. I literally want to see Diwakar Banerjee sitting on 100 crores and coming up with Khosla Ka Ghosla 2 next year, because that's one thing that almost everybody is waiting for. Like, I'm telling you, अगर वो फिल्म हो, अगर आप बनाते हो ना, नोट छापने वाली बात है ना, जो आपके लोगों की जो आपको कहते हैं सर नोट छाप लो, आप उनको नोट छाप के दे दोगे। डोंट यू थिंक सो? आपको लगता ही है दैट वाज सच अ ह्यूज हिट फिल्म? अब जो भी है, मेरे को नहीं पता कि कितने नोट छापे जो प्रोड्यूसर्स एंड ऑल दैट। मेरे को इतना पता है कि जो बेचारी प्रोड्यूसर साहिबा थी, उन्होंने पहले अपना घर गिरवी रखा, फिर अपनी गाड़ी गिरवी रखी, फिर फिल्म खत्म किया, अच्छा, खत्म कर। तो मेरे हिसाब से ये कि मैं एक फिल्म नहीं बनाऊंगा, अभी मरने से पहले कोशिश करूंगा कुछ और बना के जाऊं। तो उसके चक्कर में मेरे को ये करना ही पड़ेगा कि यार मैं फिल्में बनाऊं तो प्रोड्यूसर थोड़ा नोट छाप ले, हाँ, राइट, ताकि मेरी अगली फिल्म इजी हो जाए। इजी हो जाए आपके लिए। तो हाउ वाज CBFC विद यू फॉर लव सेक्स एंड धोखा 2? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2010's CBFC and right now CBFC, given the whole political uproar in the country back then and right now? See, the thing is, I don't remember the 2010 thing very well. Right. I remember, in fact, graphically the film, the experience of CBFC when I was trying to get the certificate for Titli, a film that Kanu Behl made and I produced, a film that Kanu Behl directed and I produced. So, उसमें I co-produced with YRF. तो उसमें एक यादगार एक मोमेंट था CBFC के चेयरमैन के साथ। तो वो बाद में एक फिल्म में मैंने डाला भी, खैर वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई, वो नेटफ्लिक्स के लिए एक ओरिजिनल बनाई थी। 30 की बात कर रहा हूँ। हाँ 30, तो वो भी रिलीज नहीं कर रहे। सो तो उसमें वो मोमेंट है जो हमने वो जो कनू और मैंने जो फेस किया था। सो एनीवेज, तो मेरे को 2010 की ज़्यादा मेमोरी नहीं है, 2024 में जो हुआ है। सी देखो, एक हमारा कैरेक्टर जो बहुत गालियां देता है और बिना गालियों के बात नहीं करता, वो उसका गेम फेस है, वो उसकी पर्सनालिटी है, वो वैसा इन्फ्लुएंसर है जिसके पीछे तो भाग रहे हैं भाई 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 भाई। सो वो गालियां बहुत दे रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि माँ और बहन की गाली प्लीज आप मत दो। तो मैंने कहा कि सर मैं बाप की गाली दे सकता हूँ, मतलब समझ लो अगर वो मादर ना बोले, कैन वो फादर बोल सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने हंसे थोड़ा सा, फिर नहीं आप फैमिली को छोड़, बाकी उन्होंने कुछ नहीं टच किया। और जो एक फिल्म में न्यूडिटी है,
हाँ। वो न्यूडिटी सेंसर बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है, वो हमारा इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट है कि हम फ्रंटल न्यूडिटी नहीं दिखा सकते। अच्छा, राइट। हाँ, हम ये नहीं दिखा सकते लीगली कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, हम ब्रेस्ट्स नहीं दिखा सकते, हाँ, हम जेनिटालिया नहीं दिखा सकते, हम फ्रंटल न्यूडिटी नहीं दिखा सकते राइट। बाय लॉ। सेंसर बोर्ड उस पर कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत रीजंस देने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ स्पेशल आता है। लेकिन अब तो ट्रिब्यूनल भी चला गया है, तो अब तो बस कानून है और सेंसर बोर्ड है, और सेंसर बोर्ड से अगर नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे राइट। कि मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ट्रिब्यूनल तभी नहीं रहा। तो लेकिन हमें पता था कि ये अडल्ट फिल्म है, तो अडल्ट फिल्म है क्योंकि उन्हें पता था अडल्ट फिल्म में उन्होंने सारी मतलब गालियां वालियों को पास कर दिया, बस माँ बहन की गालियों को नहीं माना। और बाकी जो न्यूडिटी है उसमें हमने ब्लर कर दिया, इसके सिवाय कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ बहुत नहीं। बहुत एक्चुअली बहुत स्मूथ रहा। So you think the whole process of going through the CBFC thing, it came to you as a surprise कि इतना smoothly निकल गया, or were you expecting any hurdles? या आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, क्योंकि ऐसा कुछ ये पॉलिटिकल फिल्म तो है नहीं, ना ही कोई हिंदू मुसलमान फिल्म है, ना ही कोई पाकिस्तान इंडिया फिल्म है, ना ही ये केरला स्टोरी है, ना ही ये ऐसी कोई स्टोरी है जहाँ पे किसी एक कम्युनिटी को कुछ एक तरीके से दिखाया जा रहा है या दूसरी कम्युनिटी को किसी तरह से दिखाया जा रहा है, ना ही ये किसी को खुश करना चाह रही है, Exactly. बल्कि उल्टा हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। प्रोवोक मैं बोलने करना वाला चाह था। रही है। तो और इतनी सस्ती फिल्म है, छोटी फिल्म है, कुछ है नहीं, सेक्सुअलिटी, जेंडर पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में, तो आई डोंट थिंक दे रियली पेड एनी, आई डोंट थिंक इट मैटर्स। आई मीन How in tune are you with the entire woke culture right now? जो भी चल रहा है, given the fact that you are not very socially active, you must talk to your kids. How old are your kids? my older one is 14, my younger one is 10. So they must know what's going on Instagram. They must know about the whole entire cancel culture, woke culture. So have they ever come up to you and talked to you about it, what's happening in the woke culture? See, the thing is, I won't talk about my daughters because they are exceptionally non-internet connected. Oh, blessed. As of now. Blessed. As of now. Right. It'll change. Yeah. And of course, I'm sure I don't know a lot of what they are seeing or consuming. 100%. But still, I have the confidence. Yeah. But if you are talking about 14-year-olds, I don't think they are. If you're talking about elite English-speaking 14-year-olds or middle class, upper middle class 14-year-olds who I know about, because I come from, I reside in that small thin layer on top of India's economy. मेरे ऊपर ओलिगार्की है. मेरे ऊपर बोले ओलिगार्की वाली लेयर है, उसके बाद हमारे जैसे हैं, फिर द रेस्ट ऑफ इंडियंस, और मैं अपने लेयर में सबसे नीचे हूँ, मतलब जरा सा धक्का लगे तो मैं नीचे चला जाऊंगा, यू नो, इट्स लाइक दैट, barely sort of, Paycheck you know, to paycheck, paycheck to paycheck, hanging on to the bottom of the creamy layer. So that's Right. so, but still, क्योंकि you are there, still there, you know other people and all that. Right. So अर्बन मिडिल क्लासेस में 14 साल की लड़की को वोकनेस से कुछ क्या पता, उनमें कुछ Right. मतलब घंटे का सरोकार नहीं है। मतलब वो सीधी बात, उनको सीधा समझना है कि बॉस तुम हमसे चाहते क्या हो, चाहते क्या? राइट। या तो क्लियर बता दो या तो एकदम मत बताओ, हमें अपनी करने दो, चाहते क्या हो, क्लियर बताओ। और ये पेरेंट्स जो हैं इनको इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स वोक हैं, तो they are trying to, पेरेंट्स वो क्या है? हाँ। अभी मेरा मन कर, अबे साली होमवर्क कर, लेकिन मैं वो नहीं बोल सकता, तो आई टॉक अबाउट दुनिया जहान कि you know how it shit is and you know how we figure out things and all. Right. तो यही हो रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, they accept the reality they're born in. That's true. मेरी बेटी हुई है अभी 4 महीने की है वो, she just crossed 4 months, right? और ये जो, और मैं कनाडा में रहता हूँ, which is like the epicenter of woke culture, right? Like everything wrong you can think with society, oligarchy. The biggest example is Canada. The capitalism का biggest example is Canada. पूरा कनाडा को 4 से 6 कंपनियां चलाती हैं.
जैसे हमारे देश में चलाती है, जैसे भारत में चलाती है पूरे देश को, ऐसे ही पूरे देश को 4 से 6 कंपनियां चलाती है। मोनोपोलाइज्ड है हर चीज, दिन दुगनी रात चौगनी महंगाई बढ़ रही है। तो जिस क्रीम में आप हिंदुस्तान में अटके हुए हो, मैं कनाडा में अटका हुआ हूँ। 5 साल हुए हैं मुझे यहाँ पे मूव। सो द सेम थिंग, जैसे आपने बोला मेरा अंदर से मन करता है, आई एम अ 90s किड, मैं 90s में पैदा हुआ, राइट। आई एम 33 years old right now. So the way we grew up, I come from Rohini. I spent my entire life in Rohini. दो कमरे का घर था। सेक्टर 16। कौन सा सेक्टर? सेक्टर 16। सो सेक्टर 16 जाने के लिए यू वुड हैव टू क्रॉस अ नाला। एक नाला आता था जो रास्ते में, जहां से ज्यादा बारिश पड़ जाए तो स्मेल आती थी घर के अंदर तक, राइट। एंड नाउ माय डॉटर, she is born in a first world country. There are differences which makes it a first world and a developed and a developing nation, right? So how am I going to explain her the things कि तेरा बाप ऐसी जगह से आया जहाँ घर के साइड में नाला था, एंड मेरा घर इतना छोटा था कि मैं आपको यही बता रहा हूँ 25-26 साल की उम्र में was the first time that I was given a separate bed to sleep on, because घर छोटा था, 4-5 लोग थे घर के अंदर, एंड बड़े ऊपर सोएंगे, छोटी बहन ऊपर सोएगी, तू नीचे सो जा, तेरे लिए गद्दा बिछा देते हैं। एंड 25-26 years old I was sleeping there, राइट। और यही चीज जो आपने बोला कि वोकनेस, भाई वोकनेस का टाइम कहाँ है मेरे पास? यहाँ तो मैं सुबह उठ के गद्दा फोल्ड करके निकलूं अपने काम पे एंड पे द बिल्स, राइट। और एल्स आई वुड नीड टू हैव सो मच टाइम ऑन माय हैंड्स कि यार हाँ मैं ये बैठ के देखोगे एजेंडा क्या चल रहा है। ठीक है, हाँ इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग ये ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आई मीन मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चों से ज्यादा प्रॉब्लम उनकी पेरेंट्स में है। इसलिए LSD 2 अगर अंकल लोग देख ले तो शायद कुछ, अगर LSD 2 में कुछ अच्छा है, हाँ, तो अंकल लोग अगर देख ले, अगर आंटी लोग देख ले, तो शायद थोड़ा सा वो ठीक से अपने अगले जनरेशन से मैन टू मैन, वुमन टू वुमन बात कर सके। ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए, या तुम कुछ बोल कुछ रहे हो लेकिन मीन कुछ और कर रहे हो। That's the first moment when the child starts distrusting you. Right. That's the first moment. ये कुछ और बता रहा है, मैंने देखा कुछ और था, बता कुछ और। झूठ बोल रहा है तू, क्योंकि तू खुद ऐसे नहीं करता, तो तू झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि तू मुझसे झूठ बोलता है तो मैं भी तुझसे झूठ बोल सकता हूँ। Exactly. ठीक है भैया, कल से मैं चालू करता हूँ। तो ये सब ऐसी, I don't think the kids are really whatever. I think if a film like LSD 2 is played on a screen at home or in the theaters, और अगर माँ बाप साथ बैठे हैं, let's say 15-17 साल का भी बच्चा है, nearing adulthood, 18 साल, और माँ बाप साथ बैठे हैं, there would be certain scenes, there would be certain things that would ruffle everybody, right? It would. मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आप फैमिली व्यूइंग करो इसको, प्लीज यार। मैं तो कह रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, या तुम्हारी उम्र 20 साल 18 साल है एंड योर डैड्स लाइक 45-50, राइट, एंड ही एंड यू हैव एन इक्वेशन कि भैया चलो देख लेंगे, आपको अच्छी नहीं लगी, बोरिंग नहीं लगी, वो अच्छा है, लेकिन देखनी नहीं चाहिए। ये पिताश्री वाला जो एक इंडिया का जो है ना, पिताश्री की खोज में मॉरल हाई ग्राउंड्स नहीं, हम पिताश्री ढूंढ रहे हैं ना, कहीं पे भी पिताश्री मिल जाए। तो पिताश्री की खोज में जो भारत जो जा रहा है, तो वो अगर रिलेशन आपके अपने बाप से ना हो या अपनी माँ के से ना हो, और बोलोगे भैया तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं एडल्ट हूँ, तुम एडल्ट हो, यस आई एम योर सन, आई एम योर चाइल्ड, बहुत आपने मेरे को बड़ा किया, आई रियली लव यू, अब बस अब फिल्म देखते हैं, तुम बोर हुए अलग बात है, लेकिन देखनी नहीं चाहिए। ये कहाँ से आ गया? ये गलत है, ये नहीं चाहिए, ये कहाँ से आ गया? और अगर मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि डैड जीन्स नहीं पहननी चाहिए। Did I say once? Did I ever say that, you know, I mean, anything that you do as a parent, I may disapprove of it. But have I ever said you should not do it? Right. Then why is a parent telling a child you should not? Then कारण दो, या तो कारण दो। तो यही ऊपर से नीचे चलता है। So if that breaks, then you can enjoy LSD 2 with the family. It's that kind of a family. Right. Would you prefer sitting with your daughter who's 14 years old or probably 15 years old? No way. Absolutely not. It's not age appropriate. Right. Yeah. Which makes sense. Absolutely. That's it. It's not age appropriate. You can talk about those issues, but not in the way that I'm speaking about in LSD 2. There has to be some other film.
Right. Is she aware of what you do? Very well aware of what you do, that you write films, you make films and stuff like that. Has she come up to you Barely. and expressed this desire that Dad, I would want to follow in the Barely. footsteps? Barely? No way. Both of them are barely aware of it, and we keep it that way. I mean, as in me and my wife, we keep it that way. Right, right. So जो आप They don't बोल know. रहे हो, They you are also shouldn't. implementing the same things in your kids, right? With your kids, you are implementing the same नहीं, things. मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया में फिल्म मेकर बोलते ही ना एक थोड़ी सी ग्लैमर शूमर सी कुछ हो जाता है और हो जाता है। मैं वो नहीं हूँ। तो अगर उन्हें लगे कि माय फादर इज फिल्म मेकर और ये सब और वो सब, एंड देन उन्हें लगे कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज है एंड ऑल दैट, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आई थिंक टू देम आई शुड बी अ डैड। Right. What do you think about the capitalistic society? Are you a socialist at your heart, or do you I'm think definitely capitalism? less. I'm definitely. I mean, less capitalistic than more capitalistic. Right. But देखो यार, मैं सही बोल रहा हूँ। हमारी फिल्म में एक लाइन है कि एक औरत दूसरी औरत से बोल रही है कि देखिए जी, मेरे शरीर में अगर 5 स्पर्म सैंपल नहीं मिले तो फिर आपका बाथरूम साफ नहीं होगा। Right. तो मेरे लिए ये है कैपिटलिज्म Deep. कि अगर मैं रात में 5 लोगों के साथ प्रोस्टिट्यूशन ना करूं तो फिर आपका बाथरूम नहीं साफ होगा, क्योंकि मैं काम करती हूँ आपके लिए। मेरे लिए ये कैपिटलिज्म है कि आपके लिए काम करने के लिए मुझे पैसे ढूंढने पड़ते हैं। Yeah, capitalism makes sense. And how easy is it a person like you who thinks like this to survive in a हाँ जी? completely how easy is it for a person like you who thinks with such liberal thought process कि हाँ ये चीजें हैं, the thing that you just told me is so deep, right? If this dialogue comes, the person who listens to this dialogue would think about this dialogue for the next 2 days कि हाँ भाई what Dibakar wanted to convey with this thing, right? How do you find yourself established in this capitalistic industry, which is Bollywood? Like everything is driven See, by the thing capitalism. is, yeah, the one thing that helps is that we don't have too much money. That helps Right. because you're always in you're always in need of money. You're always कई बार stressed out. गुर्बत भी अच्छी होती है. Yeah, you're always stressed out. You're always cautious. You're always vigilant. Right. And also being upper middle class, you always have those social, ambitions. Right. कि ऐसे कपड़े होंगे और ऐसी गाड़ी होगी, दोगे ना? So, but still, so therefore you keep on trying to figure out कि मैं कितनी hypocrisy रखूं और कितना, You would have to balance the scale of hypocrisy. sincerity. You have to balance sincerity and hypocrisy. तो ऐसे जीता हूँ। Right. So how do you maneuver yourself into this industry, right? Do you go to a lot of parties? Do you socialize a lot with the big shots? And No, that I everybody in the don't. industry? That I don't. That I You don't. don't do that. What happens is that my work kind of, therefore, has spoken for myself by now. Right, right. So it's okay. By far, that's not adequate. But what also happens is that, I mean, I come cheap. So my films are also cheap. That doesn't mean that they make a lot of money. They don't lose money. Right. So what happens is I think that you when underestimate your producers and- filmmaking skill. If I'm telling No, I'm you, not you were underestimating being my talked films, about in I'm just colleges. saying- When I was in, No, I'm not underestimating. I was also only saying that I would love to make LSD too. I would love to sort of, love LSD to make 100 crores. But we're just not releasing in those many prints. right, those many screens. In A film like LSD2 cannot release so wide because the cost of releasing wide to be able to get that on a subject like this, you can't. You have to release targeted. And Then then why not OTT? word of mouth fly. Why not OTT? Why Of did course, you it'll not go to choose- OTT. No. That's Ekta's decision. That Ekta was very clear that she wanted to do theatrical. Because she really wanted, if for her it's that brand that she's very fond of, that she's very close to. It could be my fantasy. Or she's, whatever. Yeah. But I can see it. She's close to it. And it's not easy. It's not easy to theatrically release a film like LSD2 in these days.
Absolutely, 100%. It's not easy. I It's have not easy. seen her fight tooth and nail. She has fought it. और मैं ये प्रोड्यूसर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ. हर रोज झगड़े होते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि that's a real एकता is thing. fighting. The way she is fighting, it's not easy. It's not easy. So ये सब चलता है. So but what I'm saying is that if you're cheap, if you sort of pull your costs down, then your freedom increases a bit. And I don't have to go to parties, but they know that if they have spare cash, and if they want to do something which is slightly more, away from the, the general mainstream, but yet something which has library value, something which stays. Right. So they say, okay, fine, let's give the Bakar a call. Dekhte hain, kya hota hai. That's how I survive. So that's how you survive. So whiskey or beer? Beer तो आप अभी पी रहे हो. What are you more fond of? It's so interesting. I like both. I don't want to choose between the two. नशा मतलब is it because do you smoke ganja? Do you do marijuana? If you want to cut it out, we can cut this out. No, I don't want to cut it out. I mean, marijuana smoking is illegal. Right. Right. It is in fact, right? In India it is. It's illegal. It is in fact. Yeah, but we drink bhang during Holi. That's legal. I mean, that I don't know. But I mean, if you're saying, do you smoke ganja and all that? It's illegal. One should not do anything that's illegal. Yeah, that's like a responsible father. Speaking on camera, I'm taking notes. Although cut होने के बाद मैं गांजा शायद थोड़ा सा पीऊं, लेकिन but since it's legal here. Yeah. So whiskey or beer. So you do not discriminate. You're good with any. No, it's strange that you said I like whiskey and beer both. But I mean, you have to have your hands on good whiskey and good beer, which is, I mean, you need to be a little careful. That's all. I mean, When did you realize that now I can afford like expensive fucking whiskey or expensive fucking beer? Like when you started I making didn't films, realize. Right. You I just never realized. blend into Do you know what I do? Do you know the uncle side of me? Yeah. I keep switching off fans. Same. अब मैं बाप बन I गया नहीं करता हूँ मैं. I keep going to different rooms in my home हाँ. and switching off fans and switching off ACs. So I become Khosla. And the same things are happening with me now. पहले मैं लाइटें खुली छोड़ देता था, मेरी बीवी डंडा लेके घूमती थी मेरे पीछे, यार तू लाइटें बंद कर दिया कर, इतना बिल कौन भरेगा. Now that I have a kid and she would probably look up to me. Now I go around the entire house switching off lights and चप्पलें जूते साइड में करता हुआ रखता हुआ, झाड़ू लगा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. So now so it just happens, right? One day you are drinking Old Monk, which is like $100, then the next few years you find yourself drinking the finest rum in the world. Does that happen with you? नहीं, मुझे नहीं पता उसका कुछ. मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. हाँ. अगर ठीक ठाक विस्की मिल जाए, ठीक ठाक बियर मिल जाए, it's okay. So plus as you grow older, time नहीं है. Everything has gone down. So it's like that. And also what happens is that that father figure that you have in your mind, na, कि ये मत कर, वो मत कर, ये ऐसे कर, whatever. वो in fact it's there in one of our stories. Right. अभी बात भी तो जो गेमर वाली कहानी है उसमें मेरे लिए बाप बड़ा इंटरेस्टिंग है. अच्छा. वो बाप कभी दिखता नहीं है, लेकिन वो बाप की आवाज सुनाई देती है और बाप हर वक्त चिल्ला रहा है. सारा टाइम चिल्ला रहा है, डांट रहा है, और मतलब he is not there in the story that much, but you feel his presence and he is always angry at his son. Right. So वो जो सीन है उससे निकलने के लिए you have to be loose. तो I mean that's just our film, but I'm saying that in life I think you need to shed weight. नहीं तो वो फिर वो बच्चे की सबसे बड़ी मेमोरी हो जाती है कि मेरा बाप दिन रात imposing है. हाँ, imposing है. That's true. दादा एक बात बताओ, what do you think a film like Shanghai would have been able to release in the political scenario that we live in right now, that India is in right now? It would have been able to, I think, because it was not about Hindu Muslim. It would have been able to. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बहुत अच्छी हो जाती है अभी कोई रिलीज. आई थिंक व्हाट हैपेंस इज दैट जो सबसे बुरा हो रहा है उस बुराई के अगेंस्ट अगर आप बोलो और फिर जब आपको दबाया जाए
उसे रिप्रेशन कहते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के लिए मेरे दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम इशू था ही नहीं। मैंने तो मेरे दिमाग में तो रिलीजन था ही नहीं। मैं तो एथीस्ट हूँ, कार्ड कैरिंग एथीस्ट हूँ। अच्छा, Totally. I believe all religion are superstitions. So that's another matter. yeah, I mean, that's another matter. actually, they're not superstitions. They are actually mythology, which is a Bronze Age technology, and superstitions combined. Right, right. And you've always been like this. Both. You were never into religion. I was never too. So the thing is, वो मेरे पास था ही नहीं issue. Issue तो तब बनाया गया, issue मेरे दिमाग में भी क्या है? I don't believe in Hinduism. I don't believe in Islam. But I believe that persecution is wrong. Right. तो उसके बारे में अगर फिल्म बनाओ तो एकदम नहीं निकल सकती, रिलीज ही नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। But the actual Dibakar in you would want to make a film like that in the next coming 5 years. I would think so, लेकिन एकदम वैसे नहीं, क्योंकि कुछ करेक्ट होना चाहिए। I don't want to make a film about religion. Or a religion doesn't anger me as much as persecution and repression angers me. Right. Which makes I don't believe in religion, but it doesn't anger me at all. Its existence doesn't anger me. But to use it as an excuse angers me. What do you think? The comedy-scape in Bollywood is dead right now. What was the last very funny film in Bollywood that you watched? That actually had you in मेरे को याद space. नहीं। Like Khosla was a funny film, right? You've made a But it's my hilarious film, so I can't laugh at it because I right, already that's what know I'm the saying. joke that's coming. No. That's what I'm saying. No, you know how a comedy film should be made, right? You've done it and you've done really well at it. So what was the last film, if not comedy, what was the last Bollywood film that left you in awe? कि हाँ भाई बहुत बढ़िया फिल्म है, ये और चलनी चाहिए थी, या इसको लोगों ने इतना देखा नहीं जितना देखा जाना चाहिए था. Which was the last one? One you would consider A Baleo, I'm pretty sure. ईबाले तो है ही लिस्ट में, है ही ईबाले तो है ही लिस्ट में। कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। Right. ये दिमाग में LSD2 भरा हुआ है। चलो तो फिर LSD2 के बारे में बताओ मेरे को कि नहीं मैं इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई फिल्म याद नहीं आ रही है क्योंकि Right. it's just visually or sort of stress wise I'm in LSD2. Right. So आप बिग बॉस पे होके आए हो, बिग बॉस देखते हो? नहीं, कहाँ देखता हूँ? वो तो एकता ने बोला तो मैं चला गया पीछे, क्योंकि वो प्लान ही वही था कि मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा वहां पे। मैंने कहा एकता मैं क्या बोलूंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या बोल सकता हूँ वहां पे। तो ठीक है, एकता ने बोला ओके फाइन आई विल डू द टॉकिंग, सो शी डिड द टॉकिंग। सो लेकिन क्या हुआ कि मुझे पता था कि मैं वहां पे यूजलेस हूँ, क्योंकि LSD2 के लिए हम जा रहे हैं तो मेरी वहां पे जरूरत है जस्ट टू शो माय फेस। लेकिन अब मजे की बात देखो, जैसे ही LSD2 जैसे ही बिग बॉस में गया, अगले दिन जो मुझे सबसे कम टेक्स्ट करते हैं या जिन्हें मुझ में सबसे कम इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले टेक्स्ट किए। तो कैन यू इमेजिन द रीच? लिफ्ट में पहचान बढ़ गई, आई सॉ यू ऑन बिग बॉस। सो यू नो 10 साल जो मुझसे कभी तभी तो बस तुम्हारे कहा ये LSD जो बन रही है सही बन रही है। एकता का मैंने हाथ पकड़ लिया, तो जाने दो, जान लेके जा रही है, सही बन रही है। एक्सपोजर में जो रियलिटी शो है वो सही है, एकदम ऐसी है। Did you get a chance to watch The Railwayman, जिसमें KK मेनन साहब थे? Did I get a chance to watch The Railwayman on Netflix? देखा आपने? No. I saw the trailers. Yeah. And since the trailers came out and the show came out while I was making LSD, I didn't, because I don't watch anything while I'm making something. It's very traumatic for me. Have you thought about getting into the OTT scape with a web series in the coming future? Have you given it a thought कि बना सकता हूँ? वेब सीरीज का पता नहीं, OTT मेरे लिए OTT थिएट्रिकल क्या है, जो पैसे देगा मैं फिल्म बनाऊंगा। और I mean whatever the film I can make. And how does it matter? OTT only increases your choice. मैं तो बना ही Netflix ओरिजिनल 30, लेकिन वो रिलीज ही नहीं हुई। 30 के साथ हुआ गया था। I mean, वो इतनी, जितना भी मैंने पढ़ा है उस फिल्म के बारे में, मल्टी जनरेशनल फिल्म है, goes right up to the future, 2042 तक जाती है कहानी, राइट? 2008 से मेरे ख्याल तो 2042 तक नहीं 1989 to 2000
हाँ 42 तक 1989. तो हुआ क्या द कॉन्सेप्ट वाज राइट द कास्ट वाज वेरी फिनोमिनल हुमा कुरैशी एंड हर मजा वो कलाकार है मेरी it's my best film till date. I mean beyond I mean outside of LSD 2 जो भी रिलीज नहीं हुई है. It's my best film and I'm working with my star नसीरुद्दीन शाह. सी I mean मेरा मन था कि पूरी दुनिया और ये फिल्म मैंने बनाई थी घोसला का घोसला के ऑडियंस के लिए कि पूरी दुनिया देखे कि मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ काम कर रहा हूँ. ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्टार मोमेंट था. अच्छा And you should see Nasiruddin Shah in that film. I hope you get to see. I hope you get to see. I hope you get to see what Manisha Koirala has done. I hope Right, you get to exactly. see what Divya Datta has done. I hope you get to see what all the actors have done. but what do you think what problem would Netflix have at the end of the day which I puts will out know. all I type was of told. content? Huh. I was told that Netflix is not really sure whether this is the right time to release the film. And I also think that Netflix officially told another magazine, Deadline USA. They I think what they said was that the film did not fit their slate. Which is a very vague statement again. Everything is left into the shadows, right? How Netflix has all I type think of in retrospect, it's a very apt statement. I definitely think these fits their slate because have seen their slate. right, makes sense. Now, like quickly, one question that I wanted to ask you: do you think South Indian film industry has hugely impacted how Bollywood make films right now? Yes. In the past, at least in the past 4 years, Yes, I don't think it's a 4-year issue. it has I always think been it's there. a 10 Remakes to have always 15 been year there. issue. Right. It's a 10 to 15 year issue. We've just been too slow to read the science. Over the last decade and a half, they've come up with new interpretations of old superstars. Right. They've invested in stories. Yeah. They've invested in subversion in the superstar genre. Exactly. Right. They have invested in some amount of proletarianism, okay, Which makes sense. through Which their does. superstar system. Yeah. Very visible. In addition to that, the independent film industry, let's say the Kerala film industry, and other such independent films have kept the independent film vibe because they've kept theatrical alive. And they've not let their budgets get bogged down by astronomical star fees. And they've been intelligent about trying to increase the number of theaters per capita Per capita. Yeah. True. in terms of release. I don't know what the exact figures are. I think India overall has less. India is the world's biggest producer of films, but it has less number of theaters per capita than Germany. Let alone the US. Or okay, sorry. Let alone the US. मतलब if you compare it to the हाँ, US, then हाँ, it's हाँ, अगर जर्मनी से ही हाँ, कम है तो US से तो which has a मतलब which has थोड़े the दिन biggest film थोड़े दिन industry पहले in the तक तो world. ये था. थोड़े दिन तो वो तो थिएट्रिकल का जब हो रहा था. Right. एंड तो एक तो वो है तो कम्युनल एक्सपीरियंस है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, एंड इन्वेस्टमेंट इनटू लोकल स्टोरीज है, इन्वेस्टमेंट इनटू वर्नाक्युलर है. बॉलीवुड में जो पावरफुल हम जैसे लोग जो हैं, हम अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं, क्रॉसवर्ड्स में जाके क्रॉसवर्ड बेस्टसेलर्स पढ़ते हैं, हमें हिंदी नहीं पढ़नी आती, हमें बंगाली नहीं पढ़नी आती, हमें गुजराती कहानियां नहीं पता, हमें धरती से जुड़ी हुई कहानियां नहीं पता. एक मराठी फिल्म मेकर बहुत कम पैसे में कोई फिल्म करता है तो फिर हम उसका रीमेक बना के पैसे बनाते हैं. Exactly. No, which is a very very good thing that you've said, right? तो And- फिर तो हमारी अपनी एबिलिटी टू कम आउट एंड जंप इनटू आवर ओन रूट्स एंड कम आउट विद आवर ओन स्टोरीज right. वो धीरे धीरे कम हो रही है. तो साउथ तो है ही हमसे आगे. South हमसे तो आगे है ही, right? I was watching this Malayalam film called Brahmayugam. If you ever get a chance, Mammootty है उसमें. Watch that film whenever you get the time. It's a fantastically made film, psychological horror film है, and coming out of very small budget film. Fantastic thing, and it has everything in layered form, whatever you spoke about right now.
everything. And that's why it's a pan India hit despite of not being released in Hindi too. Yeah. That's the power, right? People are finding the Hindi subtitles now. But the whole point is कि हमने जो साउथ से उठाया वो उठाया the machismo, the magnificence, right? We haven't picked up the stories that they are picking, right? We are Bollywood. When I look at it, the influence of South into Bollywood is how big we can create this star. But शाहरुख ने किया ना. With Jawan, I can say so. With Jawan, I can say so a little bit. But Jawan was not a very content-driven film, to be honest. Jawan was not a content-driven film. Some parts of it were, where he was like outrightly challenging it became anti-establishment in parts, which is something that I really liked. It had the balls to talk about it, right? But somewhere it was South ka masala only. It was South ka masala only. If you look But at a film like South ka Kantara, masala, yeah. but South ka masala does not have identity crisis, no? No, so that's what I'm saying. पूरा No. वो जो है सो है. वो अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो वोक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो या वो बॉलीवुड वही करने के साथ कर रहा है. हाँ, मसाले दो के तीन साथ. चीजें एक साथ बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हिंदी नहीं बोलते. हम तो हिंदी में बात थोड़ी करते हैं. मैं अगर कोई मेरा फिल्म मेकर फ्रेंड मेरे को फोन करता है, मैं थोड़ी हिंदी में बात करता हूँ उससे. मैं तो इंग्लिश में बात करता हूँ. हे ब्रेव्स, हे ब्रो, व्हाट्स अप, ऐसे ही बात चलती है. तो हे ब्रो व्हाट्स अप वाली कहानियां हम या वो वर्ल्ड हम आपस में खेलते रहते हैं. हाँ, तो गुलामी चल रही है. मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हमारे देश में जो पूरा सिस्टम है, जब बॉस आता है तो खड़े हो जाओ, बॉस के बाद ऑफिस से तुमने जाना है, बॉस से पहले नहीं निकल सकते, जी हुजूरी का जो पूरा सिस्टम है जो चला आ रहा है. मैं वेस्ट में रह रहा हूँ 5-6 साल से, यहाँ पे नहीं है ये सिस्टम. यहाँ पे ये सिस्टम है आप बड़े गुस्से में गए हो यहाँ से. नहीं सर, ये कहानी है. नहीं आई नीड टू नो द स्टोरी. नहीं कहानी नहीं सर. इट्स नथिंग लाइक दैट. बहुत रूट के गए हो हमारे यहाँ से. नहीं, absolutely not sir, absolutely not. I love coming back. but the whole thing is, मैं रूठा नहीं था. इतना भी मत रूठो यार. बाप का राज है यहाँ पे. इंडिया में बाप होता है, एक बाप होता है, और उस बाप की सब पूजा करते हैं. तो इतना भी दिल पे मत ले यार. अरे नहीं sir, it's just a stark difference in the thought process and what we have been taught by the Britishers and how it's continuing in the country, right, till date, till today. Even after we have name any of the world's biggest MNCs and we have their offices in India, right? But when you look at their work culture, उनकी गाड़ी रखी है, 18 घंटे काम करा रहे हैं, ठीक है. और फिर वही हो रहा है जी, यस सर बॉस ही हो गया बस. हाँ, ऑफिस बहुत शानदार बना दिया, अरे वाह मेरे ऑफिस में तुम सो सकते हो, बियर मिलती है. पर बियर के ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली. ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये मेरे को बहुत ज्यादा खाए जा रहा है. और सबसे ज्यादा जो बॉसगिरी या गुंडागर्दी या बुलिंग चलती है, वो करता है कॉर्पोरेट कंपनी. 100%. वो जैनिटर जो मतलब बाथरूम साफ कर रही है, सबसे पहले उस पे बरसेगी कॉर्पोरेट कंपनी. सबसे पहले उसमें फॉल्ट ढूंढेगी. तो ये हर जगह हो रहा है हमारे देश में. कॉर्पोरेट जो एक इंसैनिटी है, और जो कॉर्पोरेट वायलेंस है, जो कॉर्पोरेट क्रूअल्टी है, तो वो मतलब इट्स आई मीन LSD2 में वो बहुत बड़ी चीज है. क्योंकि जैसे आपने कहा कि 21 साल का लड़का है, कोई काम कर रहा है, 20 साल की लड़की है, कोई इसने कंपनी ज्वाइन की है, उसको खत्म कर देते हैं. खत्म कर देंगे. उनको ये दिखा देंगे. when you walk into the office, the entire ideology, when you think like that, if you walk into a big MNC's office, right, and that MNC is in India, I'm not talking about the companies that are in the West, especially North America. Britain में भी कल्चर थोड़ा बहुत ऐसे ही है. My sister lives in London, तो मेरे को वहाँ के कल्चर के बारे में भी पता है. So what happens is, इंडिया में आप MNC में घुसे तो भाई यार भैया अभी ग्रेजुएट होके निकले हैं, बड़ा सपना है, बड़ी कंपनी के लिए काम करना है. अंदर गए भाई, वहाँ पे ऑफिस देखा, चकाचौंध भाई, लौंडे लड़कियाँ सब बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं. देयर इज अ होल कंट्री एंड स्टफ लाइक दैट. You are half sold there. You do not give a shit ki what comes next. You are 50% sold by the time you walk through the lobby into the interview room. You are 50% bought out by the company's name. शुरू में 20% तो कंपनी के पास ही हो गया, 30% by the time you've been into the interview room, और बाकी 50% वो आपको पता है कि आपकी वैल्यू 50,000 रुपये महीने की है, वो आपको देगा 25. फिर वो बोलेगा सोच ले, देख ले कितना एक्सपोजर मिलेगा तेरे को. वो
फिर आदमी वहां बन जाता है कि हाँ यार एक्सपोजर तो है, एक्सपोजर तो चाहिए। एक्सपोजर चाहिए। अबे एक्सपोजर का क्या करेगा, एक्सपोज तो कर रहे हैं। हाँ, एक्सपोजर का करेगा क्या? तू मुझे एक बात बता, जब एट द एंड ऑफ द डे तेरे से 9 to 5 पे साइन कराएंगे, तेरे से कराएंगे 9 to 9, ठीक है, 9 to 9 तेरे से वो करा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे थका रहा घर जाएगा, तेरे को 25,000 रुपए मिलेंगे। 1 year into द जॉब यू वुड थिंक यार ये क्या है, मुझे नहीं चाहिए भाई जिम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इस जिम का, जिसको देख के आई वाज हाफ सोल्ड, राइट? थिंग्स हियर आर वेरी डिफरेंट। थिंग्स हियर आर, आप 5 बजे के बाद आप कहीं के भी बॉस हो, आप मेल कर दिया ना किसी को, आप सू कर सकते हो दूसरे बंदे को, आपका एम्प्लॉय आपको सू कर देगा। आई हैव लिटरली सीन पीपल इन एट वर्क स्पेसेस जो बॉस को जाके ये बोल रहे हैं, आई रिसीव्ड योर ईमेल एट 5:10 बट आई हैव ओनली साइन द कॉन्ट्रैक्ट टिल 5 o'clock, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर थिंग्स। और बॉस का मुंह लाल है, वो कुछ नहीं कह सकता, राइट? तो ये जी हुजूरी वाला जो कल्चर है ना, जो बाप वाला, द थिंग दैट यू, एक बाप है वो जो बोलेगा डंडा पड़ेगा तो तभी चलेगी चीजें, हाँ बोलना है, वो नहीं जा सकता, मुझे नहीं लगता दैट। अच्छा ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं जा सकता। आपको लगता है क्या जाएगा? यार, मैंने इधर सोचा आपको कि लगता मैं है जाएगा? फिल्में बना के इंडिया को बदल दूंगा, आपने तो डिस्करेज कर दिया। अभी आप रुक जाओ, अभी आपकी LSD 100 करोड़ कमाएगी ना, आप फोन भी नहीं उठाओगे मेरा, फिर कहोगे तो रुक जा बेटा, अभी बाद में मिलता हूँ मैं तेरे से। ये होगा जरूर। हाँ, एक बार ही उठाऊंगा, एक बार कर दूंगी, एक बार ही उठाऊंगा। इंग्लिश में बात, थैंक यू, इंग्लिश में बात, और जब पैसा ज्यादा तो इंग्लिश में बात होती है सीधा फिर। या प्लीज टॉक टू माय PR यार, डोंट कॉल मी अगेन, बट आई विश यू ऑल द लक दादा, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग, एंड नहीं, मैं तो भी फिल्म बेचने बैठा हुआ हूँ, नहीं तो मैं तो लपक के आऊंगा, मैं तो हर जगह जाऊंगा, बेचने के लिए दुकान पे जाना पड़ता है। और हमारी फिल्मों में हमने चुन चुन के इन्फ्लुएंसर्स को लिया है। आजकल पता है फिल्मों में हमको स्टूडियो से फोन आते हैं कि एक्टर नहीं लो, इन्फ्लुएंसर लो। अच्छा, समझ गए? तक बात तो पहुंच अभी शांतनु आपके लिए और हजारों अदर इन्फ्लुएंसर्स का ये चांस है, क्योंकि सब आपके जो 5 मिलियन 10 मिलियन 20 मिलियन 6 मिलियन आपके साथ जो है ना, हम सब उसकी तलाश में कि कैसे यार तेरे 6 मिलियन मेरे पास आ जाए, मेरे 6 मिलियन उसके पास, वहां से ले लो। तो दिस इज LSD2, so LSD2 is happening to the makers of LSD2. It's such a confusing thing, but think about it. It makes sense. It makes sense. But too meta, too meta. आपको मेटा का असली मतलब किसने बताया? पहले ये बताओ मेरे को कि या मुझे नहीं पता। मैंने जब LSD1 बनाई तो मुझे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल ने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है लेकिन हम ले नहीं सकते बिकॉज इट्स टू मेटा। फिर मैंने अपनी राइटर से जाके पूछा कि या अपने मेटा होता क्या होता है। मेरे को लिया नहीं फेस्टिवल में, जरूर कुछ होता होगा। मेटा बोल दिया, मैं फेस्टिवल में लिया नहीं। दोनों ही चीजें नहीं समझ आई क्यों हुआ। बट दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। आई विश यू ऑल द लक फॉर LSD2। मैं चैनल पे रिव्यू भी करूंगा फिल्म को, एंड आई विल बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी। एंड सिंस नहीं, ऑनेस्ट क्यों नहीं, ऑनेस्ट मत होना प्लीज। 100 करोड़ तक पहुंचाऊंगा सर मैं आपकी पिक्चर। आप थैंक यू सर। 100 करोड़ तक जाना चाहिए। आई वांट दिवाकर बैनर्जी टू कम अप विद really good films in the coming years, और वो तभी पॉसिबल होगा जब LSD2 हिट होगी। तो थैंक यू, लेट्स सी कैसा होता है। थैंक यू दादा, थैंक यू वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू बीइंग 19th April मुझे बताया गया, और मैं भी, क्योंकि यार आजकल लोगों को डेट बतानी पड़ती है क्योंकि इतना कुछ आ रहा है, there's so much happening। 19th April in theaters all across the universe, LSD2। जाओ भाई, जाके देखना, और रिव्यू में भी मिलते हैं उसके, ऑनेस्टली सेइंग में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट दादा, लव यू। थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। And we gotta do it something like this.